Perfect. I think every one of you is waiting. So we'll begin. Good evening, everyone. Thank you so much for joining in on a Monday evening, starting day of the week. And जो पहले से भी ज्वाइन करे, आई एम ग्रेटफुल फॉर यू. जो वापस ज्वाइन करे, आई एम अगेन ग्रेटफुल फॉर यू. एंड जो नए लोग हैं, आई एम अगेन ग्रेटफुल टू यू. सो टुडे द सेशन वुड गो बाय जो अपना नॉर्मल रूटीन रहता है with analyzing the index, the commodity, and the stocks. But today the focus would be more on how do we go ahead in this coming week, because this coming week will be very crucial get an idea of as to should we just start booking profit, should we wait, should we just increase our risk sizing for position sizing. All these things would be very important for this week, because लास्ट एक हफ्ते से अपन ने बहुत एक अच्छी रैली देख ली है. बट आगे क्या करना है वो बहुत जरूरी है, बिकॉज जो हो गया वो हो गया. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, आज हम क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या करने वाले हैं. दिस इज व्हाट विल बी गोइंग अहेड. सो आई विल बी डिस्कसिंग दैट थिंग विथ एवरीवन. Okay, so let's begin. We'll begin by marking the levels of Nifty, which gives us an idea as to where the next resistance is. So एक resistance जो है वो अपन को यहाँ मिल रहा है. Last video में अपन ने discuss किया था कि when I'll just replay so that it is better. So let's say अपन 21st March की candle पे थे last session में. So we had a view कि Nifty might retrace from this level and there's a possibility कि एक pullback आएगा. But given जो अभी का आज का कैंडल है, that Nifty has crossed this level as well. That is a bit surprising because we were of a view के pullback आ सकता है. Nobody knew of course कि pullback कब आएगा, कैसे आएगा. But we have to, as I mentioned, we have to be ready with our levels. So the next level which we are seeing as resistance is clearly mentioned over here, that is 23,800. तो 23,800 जो है वो निफ्टी का अगला रेजिस्टेंस है. मैं मार्क कर देता हूँ, चैट पे मैं लिख देता हूँ, विच हेल्प्स यू ऑल. सो 23,800 इज द नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल निफ्टी का जो है, एंड विच विल increase the chances of Nifty retracing from that level. The only reason, the very simple reason is that यहाँ पे if you see ये level के यहाँ से there was a good healthy correction on the index level. 7-8% का अपन को फॉल मिला था. तो चांसेस है कि given the moving averages, निफ्टी ने बहुत ब्यूटीफुली 50 मूविंग एवरेज के ऊपर अप्लाई तो करी. I mean, it is trading above 50 moving average. Sorry, so there are high chances कि एक बार निफ्टी अब यहाँ पे आके, because given के we are again and again saying कि given market has given a 7-8% की rally, it won't constantly keep on going up and up. So what we are expecting onto the price action, let's keep it very simple. यहाँ पे जाके निफ्टी might see a pullback towards here and then a new trajectory can be started. This is one possibility, and this is what the chances are कि ज़्यादा chances है कि ये होगा, because we believe that if you will come out to the that section later जब अपन individual stock का एक price action देखेंगे, and then you'll get to know कि जो closing निफ्टी और बैंक निफ्टी दे रहा है वो क्लोजिंग स्टॉक्स नहीं दे रहे. तो दैट क्या बोलते हैं, कंपैरिजन इज वेरी वाइटल फॉर अस, because that will help us get an idea as to what exactly the market condition is, even though the index is going at a run. So coming to conclusion, 23,800 अपना नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है. वहां से एक पुल बैक मिल सकता है. अगर उसके ऊपर भी क्लोज देता है तो अपन कल के वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द नेक्स्ट लेवल. आई वोंट कॉम्प्लिकेट मच. दैट इज द रीजन मैं आपको अभी सारे लेवल्स नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज अपन को रोज मिलना है. सो दैट डजंट मेक सेंस कि मैं आपको अगले हफ्ते तक के लेवल्स बता दूँ. एज ऑफ नाउ फॉर टुमारो 23,800 इज अ रेजिस्टेंस लेवल जहाँ से अपन को एक क्या बोलते हैं, पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं. बैंक निफ्टी में सिमिलरली ये जो ऑलरेडी मैंने मार्क कर रखा है, ये आप वीडियोज में देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियोज में, कि ये रेजिस्टेंस लेवल था जो वी वर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से पुल बैक आ सकता है सिमिलरली एज टू निफ्टी. बट ये लेवल भी बैंक निफ्टी ने बहुत ही अच्छे पॉइंट्स एंड वॉल्यूम के साथ क्रॉस कर दिया है. नाउ एज यू कैन सी, आई हैव ऑलरेडी मेंशन, ये जो लेवल्स है दिस इज द नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल के 51,200 के आसपास आके, सॉरी 52,000 के आसपास आके बैंक निफ्टी एक रिट्रेसमेंट देख सकता है, बिकॉज एक ही गैप डाउन था. तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी फेस कर सकता है. एंड सिमिलरली द प्राइस एक्शन कैन बी वेरी सिंपल. जहाँ से जैसे ऊपर है, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस आता है तो बैंक निफ्टी कैन सी अ रिट्रेसमेंट टिल दिस लेवल, दैट इज 50,700, एंड वहाँ से धीरे स्लोली एंड स्टेडीली एक अपना मूव
build करके then it can gain the momentum. This is what the possibility can be, and this is what we believe कि ये price action प्ले आउट अच्छा हो सकता है, एंड दिस इज व्हाट वी आर बेटिंग ऑन कि ऐसा चांसेस ज़्यादा है कि बैंक निफ्टी में ये होगा. Now coming on to the small cap index. So small cap index is at a great level because उसने 50 moving average के ऊपर close तो दे दिया आज, which we were earlier expecting कि resistance होगा, तो वो resistance तो act नहीं किया, but definitely the small cap index has given a close above 50 moving average. It is a great thing. Chances है कि small cap index 50 moving average के ऊपर ही थोड़ा हो सॉरी रेंज बाउंड रहे, एंड वहां से फिर एक ट्रैजेक्टरी दूसरी मिल सकती है, because near term resistance is too far away, that is around 50,500. so current जो level है वहां से भी approximately 5-6% का एक resistance दूर है. so if you'll see as compared to nifty bank nifty, the small cap index is not near the resistance, उसका resistance दूर है. तो इस टाइम पे क्या हो सकता है कि आज की जो कैंडल है दैट इज नॉट अ ग्रेट बुलिश कैंडल, नॉट अ ग्रेट बेरिश कैंडल, इट इज मोर ऑफ अ दोजी कैंडल, जहाँ पे देयर इज इनडिसिसिवनेस के मार्केट का ट्रेंड क्या है एज कंपेयर टू द स्मॉल कैप इंडेक्स, एज वी टॉक अबाउट द स्मॉल कैप इंडेक्स. बट इफ यूल सी द चार्ट ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, इट क्लियरली शोज यू बुलिश साइन. तो बैंक निफ्टी का आप देखोगे तो ये एक बहुत अच्छा साइन है, निफ्टी का आप देखोगे तो द कैंडल इज रियली स्ट्रॉन्ग. बट इफ यूल सी ऑफ स्मॉल कैप इंडेक्स, दिस इज अ काइंड ऑफ कैंडल जो एक प्रॉपर कंक्लूजन दे रही है कि व्हाट द डेज एक्शन सजेस्टेड. सो what we believe is कि the small cap index might see a bit of range bound days going ahead, and अगर वहाँ से trajectory change होती है then we can see a near term resistance of 52,000 50,000 near 50,000 sorry. So that will be a very important level onto the small cap index. And talking about the CNX index, I think ये similar ही रहेगा. So again a 50-day moving average close above an extended rally. The near term resistance would be around 16,900 or 17,000 odd levels. एक वो psychological level भी होता है which acts very beautifully. तो एक 17,000 के आसपास एक resistance हो सकता है, but for the index to again gain momentum, it will have to consolidate या फिर एक पुल बैक चाहिए होगा. So अपन बहुत जो अपन ने स्टॉक्स में ही बात की है, सॉरी जो अपन ने स्टॉक्स में बात की है, we have already always spoke about कि एक मूव के बाद you need a dead zone, and after this dead zone you get another move. तो ये जो स्ट्रक्चर है, this always remains intact and it will forever remain intact, be it any asset class, be it any stock, and this is what we need to focus the most on. Nothing apart from this will happen. In general nothing apart from this happens. So अगर अपन देखें तो एक ये एक अच्छी रैली काइंड ऑफ, उसको आप शॉर्ट कवरिंग बोल लो, रिलीफ रैली बोल लो, बेयर रैली बोल लो, वट एवर यू कैन नेम इट, वट एवर यू वांट. बट द थिंग इज इसके बाद ये अप मूव के बाद देयर माइट बी अ चांस के स्टॉक द इंडेक्स माइट जस्ट ट्रेड इन अ जोन, एंड उसके बाद एक यहाँ से एक मूव अपन को मिल सकता है, बिकॉज वन गो में कोई अपने को मूव मिलेगा नहीं इतना. तो एक अप मूव के बाद एक साइड वेज एंड देन अगेन एन अप मूव. दिस इज व्हाट वी थिंक आने वाले टाइम में स्मॉल कैप का एक्शन हो सकता है इन दिस वीक. So this is on to the index side. Quickly coming down and boiling down to the commodity side. तो commodity पे अपन ने पहले एक व्यू लिया था, just yeah. So commodity में सिल्वर का व्यू क्या लिया था कि it could be a false breakout. So अगर अपन ये लेवल मार्क करें, so अभी तक जो है सिल्वर इज इंडिकेटिंग अस दैट ये जो ब्रेकआउट था यहाँ पे बड़ा बेस का ब्रेकआउट, दिस कुड बी अ फॉल्स ब्रेकआउट, बिकॉज इफ यू सी तो वो लेवल जो ब्रेकआउट था उसके नीचे भी क्लोज दे दिया है, एंड द ओनली थिंग नाउ विच इज लेफ्ट इज टू मेक अ न्यू लो. एंड अगर सिल्वर अपना एज अ कमोडिटी गिव्स यू अ क्लोज बिलो 20 मूविंग एवरेज, तो मैंने जो ये रेड लाइन आपको दिख रही है यहाँ पे, दिस इज अ 20-day मूविंग एवरेज. तो अगर निफ्टी इसके नीचे अच्छा क्लोज दे देता है, एंड ऑन टू कंफर्मेशन एंड अगर मैं बोलूँ तो अगर ये लो है दैट इज 97,150. So let's keep it 97,000, which will help us to go. तो अगर 97,000 के नीचे एक सेकंड, आई जस्ट मेंशन, सो बिलो 97,000 अगर सिल्वर जाता है, सो उसके नीचे द डायनामिक्स माइट चेंज, एंड जो फॉल्स ब्रेकआउट है दैट विल एक्ट एज अ कंफर्मेशन. So this is what we believe, that 97,000 is an important level for silver to hold on to. ठीक है. So I hope the nifty view is sorry silver view is clear as to
how we are approaching silver now. So we are not going any fresh longs. We are not going short for silver because this is an area जहाँ पे we are not एक decision make conclusion पे नहीं आ पा रहे that silver has actually given a false breakout or not. So this is a commodity which needs to be in focus going ahead, because a lot of analysts and including us, extremely everyone was bullish on silver. So the long term trend is still intact, but below 97,000 the trend might change, because एक फॉल्स ब्रेकआउट आएगा पहला, तो दूसरा 20 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज देगा, एंड तीसरा जो स्ट्रक्चर हायर लो का है वो चेंज हो जाएगा. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट. तो कोई भी अगर आप लोग सिल्वर ट्रैक कर रहे हो, तो and आपके पास कुछ अगर आप ETFs लेके बैठे हो, आई एम नॉट सेलिंग टू सेल देम, बट कीप देम ऑन रेडार. एंड 97,000 का आप एक अलर्ट डाल दीजिए कि अगर सिल्वर 97,000 के नीचे आता है, सो इट वी कैन देन लुक अहेड कि अब सिल्वर में अपन को क्या एक्शन लेना. बिकॉज हम पर्सनली क्या करने वाले हैं, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड ट्रिमिंग डाउन आवर ETF पोजीशंस ऑन सिल्वर एंड गोल्ड, बिकॉज एक जो बहुत एक अच्छा मूव जो है वो ऑलरेडी आ चुका है. सो वी बिलीव कि यहाँ से जो मूव है, क्वांटम मूव जो बोलते हैं, क्या पता वो नहीं आए. सो हमने हमारे पर्सनली सिल्वर की ETFs we have started selling them, and 97,000 के नीचे we personally will square off majority of our position. But again a disclaimer, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि 97,000 के नीचे सेल करके बैठ जाओ. मैं आपको सिर्फ हेल्प कर रहा हूँ कि दिस इज हाउ यू हैव टू व्यू एवरीथिंग गोइंग अहेड. तो ये एक लर्निंग है आप लोगों के लिए कि अपन को कैसे चीज़ों को एनालाइज करना है गोइंग अहेड. ठीक है. So now talking about gold is still intact, I believe, because now if you see जो उसका ब्रेकआउट लेवल था और 20 मूविंग एवरेज था, तो जो अपन ने ऑलरेडी मार्क कर दिया 86,600 का लेवल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड यहाँ से इफ यू सी तेरा चांसेस के गोल्ड आपका जो एक ब्रेकआउट था वो यहाँ पे एक रिट्रेस देके देन इट माइट गो चेंज अगेन एक रन जो है वो चालू हो सकता है. इट्स नॉट दैट चालू हो गई होगा, बट देयर आर चांसेस के वो हो सकता है. सो 86,600 इज एन इम्पॉर्टेंट लेवल फॉर गोल्ड. ये अपन ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, एंड द व्यू स्टिल रिमेन्स इंटैक्ट until unless ये क्लोज नीचे देता है. तो नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाट टू डू इन गोल्ड. सो we've not started selling off or squaring off our gold ETFs as of now, because ये बहुत नेचुरल सा पुल बैक है. गिवन अगर अपन गोल्ड का मूव कंपेयर करें या फिर अपन जस्ट एक एनालाइज करें, तो लास्ट couple of months में gold has given a return of approximately 40% overall. So this is what we believe कि एक बार 40% मूव आ जाता है तो it is bound to pull back wherever it has to. So 86,600 is the level we believe कि वहाँ से pull back होगा. पुल बैक वहाँ तक पुल बैक होगा एंड वहाँ से ट्रैजेक्टरी अपनी चेंज हो सकती है. नाउ वी आर डिस्कस्ड कॉपर. सो कॉपर का बहुत बड़ा बेस था. रिमेंबर अपन ने डिस्कस किया था कि ये अप मूव के बाद यहाँ पे विल बी गेटिंग, आई जस्ट मार्क द एरिया, ये अप मूव के बाद वी वर गेटिंग दिस काइंड ऑफ बेस. तो ये जो कमोडिटी है, दिस इज बाय फार द मोस्ट पिच परफेक्ट चार्ट जो हम लोग को लग रहा है कि कॉपर फ्रॉम हियर माइट डू क्रेजी. आई मीन जो गोल्ड सिल्वर का मूव था वो कॉपर टेक ओवर कर सकता है. सो इफ यू सी यहाँ पे जो अपन ट्रैजेक्टरी की बात करते हैं, ट्रैजेक्टरी की बात करना बहुत जरूरी, बिकॉज यू गेट एन आइडिया ऑफ कि पैटर्न कैसा होने वाला है. सो अगर अपन पाथ देखें, पाथ कैसा है, path is very simple. This is the path which we have been following. So higher high higher low का path copper follow कर रहा है. एंड अगर आप recent price action भी देखोगे तो recent price action में क्या हुआ कि ये 10-20 moving average, ये 10 moving average है. ब्लू वन लाइन जो मार्क है that is 10 moving average. तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से जो कमोडिटी का जो स्पेसिफिकली कॉपर का जो मूव है, इफ यू सी इंट्राडे एक्शन एज वेल, तो ये मूव यहाँ पे एक टिक दिया था एंड उसके बाद कॉपर ने अपना जो रैली है वापस वो रिगेन कर लिया. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी के स्ट्रेंथ कहाँ आ रही है. सो वी बिलीव कि आउट ऑफ ऑल द कमोडिटीज आउट देयर कॉपर हैज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ. फर्स्ट रीजन क्या है, आई विल मार्क द रीजन दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड. फर्स्ट रीजन क्या है, हायर हाइज एंड हायर लोस. सो आई एच मतलब हायर हाई एंड sorry, I'll just write it again. So it is higher highs and higher lows. पहला पॉइंट ये है कि this is why we feel कि कॉपर आने वाले टाइम में अच्छा करेगा. Secondly, it has a big base. If you'll see, I'll just again put. I think some issue with the net. Hold on, please. Hold on.
यस, सो देन इट इज अ बिग बेस के स्टॉक में एक बिग बेस है। एंड थर्ड, जो इसने प्रायर मूव दिया था वो बहुत अच्छा था, तो जो प्रायर मूव था इट वाज वेरी एक्सीलेंट, सो दैट इज द रीजन वी बिलीव के कॉपर माइट डू रियली वेल गोइंग अहेड। नाउ कमिंग टू क्रूड ऑयल में वी बिलीव दैट दिस व्यू रिमेन्स इंटैक्ट। जो एक डाउन ट्रेंड के बाद एक साइडवेज चैनल है दैट रिमेन्स इंटैक्ट, एंड वंस 5940 के ऊपर क्रूड ऑयल एक ब्रेकआउट देता है, वहां से द मूव विड बी रियली अमेजिंग। एंड वी बिलीव के एक अलर्ट डाल के रखना चाहिए कि अगर यहाँ से क्रूड ऑयल जंप देता है तो इट माइट सी न्यू ट्रैजेक्टरी, और जो अपन ने पाथवे की बात की थी, आई विल अगेन टेक द पाथवे वाला ऑप्शन विच विल हेल्प अस एनालाइज बेटर। सो वी बिलीव कि यहाँ से जब जो अभी पाथवे है वो कैसा है, ये वाला है। नाउ द सेलिंग हैज बीन काइंड ऑफ पॉज, तो अब यहाँ से जो चेंज है हो सकता है कि चेंज आपका ऐसा हो के, एंड दिस इज व्हाट द ट्रैजेक्टरी कुड बी गोइंग हेड, दिस इज नो प्रिडिक्शन एज टू यही होगा, बट चांसेस है कि ये हो सकता है। So this is what we believe on the crude oil side. Now quickly talking down to the natural gas end. नेचुरल गैस में देयर इज नो स्पेसिफिक व्यू एज टू एज ऑफ नाउ, बिकॉज कोई ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं हो रहा है, सो आई लेट द कमोडिटी गो एज ऑफ नाउ, वी वोंट डिस्कस नेचुरल गैस। बट यस, नाउ कमिंग बैक टू द मोस्ट important थिंग which we believe, uh, which sorry, coming back to the most important thing which we want to discuss is how the stocks are acting as compared to the index. So अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि इंडेक्स के लेवल पर वी हैव सीन अ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, कि भाई बहुत अच्छा एक मूव आ गया है, बट सिमिलर इज नॉट द केस विद अवंती फीड्स और एनी अदर स्टॉक्स। सो मैं स्लोली स्टेडीली मार्क करता रहूंगा जहाँ पे मेरे को लगेगा कि यहाँ से जो आपका स्टॉक है उसमें सेलिंग आई थी। सो ये स्ट्रक्चर अपन ने सबने देखा था, तो जस्ट कीप ऑन एनालाइजिंग ये कैंडल्स जो आपको रिसेंटली दिख रही है, दिस कैंडल अगेन सिग्निफाइज के ऊपर से सेलिंग आई थी स्टॉक में। द नेक्स्ट स्टॉक विच वी गो फॉर इज इंडिगो। इंडिगो में बहुत अच्छा एक ब्रेकआउट था, बट ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया, और यहाँ पे फ्यूल सी यहाँ पे 3 दिन से सेलिंग आ रही है। ठीक है, अनदर स्टॉक इज ताज जीवी के, एक्सीलेंट स्टॉक, मैं ये नहीं बोल रहा। सो आई मेक माई सेल्फ क्लियर, आई एम नॉट सेइंग ये स्टॉक्स वीक हो गए हैं, आई एम सेइंग जो एनवायरमेंट है उसको अपन को एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि एज कंपेयर टू द इंडेक्स स्टॉक कैसा कर रहे हैं। सो प्लीज उस एंगल से आप देखिएगा। एंड अगेन ताज जीवी के फ्यूल सी यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, अगेन अ सेलिंग आई यहाँ पे। GRM overseas is kind of flattish. So this is a kind of relative strength as compared to other stocks. जश इंजीनियरिंग जो बहुत अच्छा बेस था, वहाँ से फ्यूल सी आज वापस यहाँ से सेलिंग आई है। अनदर एग्जांपल जो ये है कि सेलिंग आई है। Sarda Energy, which is looking really good as of now. Again, I'm repeating, structure में कोई दिक्कत नहीं, I'm trying to make you understand price action difference. जो पहले ये मोमेंटम था वो भी sluggish हो गया है, बट इंडेक्स का मोमेंटम है वो ऊपर जाया जा रहा है, तो दिस इज व्हाट वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट। की इंडस्ट्रीज इफ यू सी के ऊपर इट ट्राई टू गो अप, बट ये कैंडल अगेन व्हाट ऊपर से इसको वापस सेलिंग मिल गई। सो दिस इज these are certain characteristics which we need to be taken care of. Now सर्टेन स्टॉक्स जो इन इस चीज़ों को भी इग्नोर कर रहे हैं, जैसे चंबल है। सो चंबल हैज इग्नोर्ड क्लियरली ऑफ द मूव के बाकी जो स्टॉक है वो कैसा कर रहे हैं। सो इफ यू सी चंबल यहाँ पे देयर इज नो रिएक्शन एज टू वीकनेस और कि रिट्रेस कर रहा है, इट इज स्ट्रॉन्ग, तो दैट इज फाइन। जो स्ट्रॉन्ग अमी ऑर्गेनिक्स इज स्ट्रॉन्ग, दैट इज फाइन। लोटस लैब्स वी आर नॉट ट्रैकिंग। आरती फार्मा लैब्स जो अपन ने डिस्कस किया था, दिस वाज अ क्लासिक एग्जांपल जब मैंने बोला था कि स्टॉक बहुत वॉलेटाइल है। सो कल के डिमांड जोन के बाद जो अपन ने मार्क किया था, दोस्त जिन्होंने वीडियो नहीं देखा प्लीज जाके देख लीजिएगा। तो जिन्होंने जो डिमांड जोन के बाद ये मूव था यहाँ पे फ्यूल सी अगेन अ सेलिंग। सो दिस इज आई थिंक अक्रॉस अ लॉट ऑफ स्टॉक्स। डॉम्स अगेन अनदर एग्जांपल जहाँ पे सेलिंग हुई है। मैं ये नहीं बोल रहा कि स्ट्रक्चर वीक है, अंडरस्टैंड, आई विल शो यू द इंडेक्स चार्ट अगेन। इंडेक्स बहुत अच्छा है, स्टॉक्स वीक लग रहे हैं एज कंपेयर टू टुडेस प्राइस एक्शन। सो इफ यू सी जिंदल ड्रिलिंग अगेन, तो जिंदल ड्रिलिंग में वी हैड सीन ये सेलिंग वापस आई, आज वापस सेलिंग आई है, तो कॉन्स्टेंटली इट इज शोइंग कि द स्टॉक्स आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। जैसे ब्लू स्टार है, एक्सीलेंट स्टॉक अगेन, बट आज का जो एक्शन है वो कैसा है, इट इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, ऊपर से सेलिंग आ रही है। सो दिस इज व्हाट कपल ऑफ एग्जांपल जो आपको मैंने सब दिखा दिए, जहाँ पे द स्टॉक्स आर नॉट क्लोजिंग दैट वेल, हल्का हल्का सा रिट्रेसमेंट है, बट मोर ऑन टू द इंडेक्स साइड, इंडेक्स तो बहुत अच्छा मूव कर रहा है। अगर अपन बात करें निफ्टी की, इफ यू टॉक अबाउट बैंक निफ्टी,
इफ यू टॉक अबाउट स्मॉल कैप बीएसई इंडेक्स, मूव के बाद आज साइडवेज था, बट स्टॉक्स एज कंपेयर करो तो बहुत ज़्यादा नीचे चले गए। तो अगर जो अपने पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है ग्लैक्सो, सो इफ यू सी ग्लैक्सो स्मिथ केयर, वो भी ऊपर से वैसा कोई सेलिंग नहीं आया है, बट द पॉइंट इज के दे हैव स्टार्टेड शोइंग काइंड ऑफ पुल बैक या रिट्रेसमेंट, जो अपन कब से बात कर रहे हैं। वी आल्सो हैव एसबीआई कार्ड्स, सो एसबीआई कार्ड्स भी आप देखोगे तो आज इट ट्राई टू गो डाउन, बट हल्का सा बाइंग और आ गया था। सो आई रिमूव द ड्राइंग्स, सॉरी एक अलर्ट है, सो अलर्ट तो रहेगा, बट या सो इफ यू सी एसबीआई कार्ड ने भी मोमेंटम अभी तक दिया नहीं है। So these are the places where you need to be very careful as to how do you trade. So I think I made myself clear onto the comparison side कि स्टॉक्स और इंडेक्स में क्या डिफरेंशिएशन अभी लग रहा है। इंडेक्स अच्छा मूव हो रहा है, स्टॉक्स में स्लगिशनेस आ रही है। सो नाउ द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यहाँ से क्या करना चाहिए, राइट? सो I'll give you a brief as to how what the mindset which we are playing with this, कि अभी जो ऑलरेडी स्टॉक्स थे वो हम उनका स्टॉप लॉसेस एग्रेसिवली ट्रेल कर रहे हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आई रिपीट, स्टॉक्स का जो स्टॉप लॉस है वो एग्रेसिवली ट्रेल कर रहे हैं। दूसरा, नो न्यू पोजीशंस, हम लोग कोई नई पोजीशन बना नहीं दे रहे जब तक एक इंडेक्स में एक पुल बैक नहीं आता। ऑलरेडी हमने क्या किया था कि जब मूव आ गया था, अच्छा खासा मूव आ गया, तो हमने हमारा रिस्क और चालू किया बढ़ाना। बट समवेयर और द अदर वी ऑलवेज फेल टू रियलाइज कि हम लोग हमेशा 100% का इन्वेस्ट करते जब मार्केट टॉप पे होता था। टॉप से आई मीन मोमेंटम का टॉप, ये नहीं बोला कि मार्केट अभी टॉप पे है। सो आई एक्सप्लेन टू यू अगेन। सो व्हाट आई मीन इज, एक सेकेंड ना, सो अगर स्मॉल कैप का ये अगर मैं व्यू देखता हूँ, सो फ्रॉम द स्विंग लो लेवल, यहाँ से अगर मैं स्विंग लो मानूँ, ठीक है, हल्का सा ही पुल बैक आया, बट चलो मैं यहाँ से मान लूँ, तो भी स्विंग लो लेवल के हिसाब से द इंडेक्स हैज मूव बाय 10%। सो ये 10% का जो मूव है यहाँ पे, अगर अब मैं 100% इन्वेस्ट करता हूँ तो चांसेस क्या है कि एक पुल बैक आ सकता है। क्यों? बिकॉज ये जो स्विंग लो था, इफ यू सी, यहाँ से 10% का मूव दिया, करेक्ट? अब यहाँ से वो 10% मूव देने के बाद एक पुल बैक कितने का आया? 5% का पुल बैक आया, वापिस से 10% का मूव दिया। सो दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर माइट बी गोइंग अहेड। एक 10% का मूव आया, हल्का सा पुल बैक आया, एक वापस 10% का मूव दिया, हल्का सा पुल बैक इस लेवल तक आ सकता है, एंड वहां से एक वापस 10% का मूव आ सकता है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग द इंडेक्स टू कम डाउन टू दिस लेवल, दैट इज 45,900 आई थिंक, या 46,000 के आसपास, एंड वहां से इट इज अ काइंड ऑफ 4-5% का पुल बैक है। सो एक सेकेंड, आई थिंक सम नेटवर्क इशू, यस आई थिंक कोई नेटवर्क इशू था। ओके, यस, सो दिस इज व्हाट वी बिलीव कि यहाँ से जो पुल बैक है वो आ सकता है, एंड देन गोइंग अहेड वी कैन डू अमेजिंगली वेल इफ द स्ट्रक्चर स्टेज इंटैक्ट। So this is what our view is. Okay, we'll first of all we'll start trailing our stop losses aggressively. जहाँ पे लगेगा कि प्रॉफिट बुक करना, वहाँ पे हम प्रॉफिट बुक करेंगे। एंड थर्ड, विल मेक श्योर दैट द पोजीशंस आर नॉट बिल्ट न्यू, कि हम लोग नए पोजीशंस नहीं बनाए। सो दिस इज व्हाट, एंड द स्टॉक्स जो अपन रेडार की बात करते हैं, वी ओनली हैव आई थिंक ब्लू स्टार। ब्लू स्टार इज द ओनली स्टॉक जो हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज इफ यू सी ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम द स्टॉक हैज नॉट फॉलन मच। अगर डेली टाइम फ्रेम में बात करूँ तो एक स्ट्रक्चर बहुत अच्छा इंटैक्ट है। सो वी बिलीव कि जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज हाईली इंटैक्ट, एंड यहाँ से एक अच्छा मूव आ सकता है। बट ऑफ कोर्स हम लोग अभी नए पोजीशंस बिल्ड नहीं करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड टिल द टाइम हम लोग पोजीशन बिल्ड करते हैं, या विल अपडेट यू डेफिनेटली। एंड so now I'll quickly take up the question and answers. So Janam का question है कि has the new bull run started? So I think it's a kind of not tricky question, but ऐसा क्वेश्चन है कि जिसका आंसर अगर हमारे पास होता तो we would be somewhere else in life. But any which ways, जो हमारा व्यू है that is very simple. We believe in the present kind of scenario जहाँ पे स्ट्रक्चरली जो चेंज है उस पर फोकस करना चाहिए। सो आई वुडंट कमेंट कि नया बुल रन स्टार्ट हो गया कि नहीं, बट एज ऑफ नाउ थिंग्स लुक मच बेटर ऑन टू द साइड ऑफ, लेट्स से, स्ट्रक्चरली जो अपन बात करते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर था वो मैंने आई थिंक वीडियोस में बहुत पहले बता दिया है कि ये जो स्ट्रक्चर था दैट हैज चेंज टू हायर हाइज एंड हायर लोस, और ये चांसेस है कि ऐसा हो सकता है। सो बुल रन स्टार्ट हो गया कि नहीं हो गया है,
rather than focusing on that, we need to focus on the current environment as to what अपने stocks कर रहे हैं, and we need to focus on that. Thank you. Are you tracking TCPL packaging? So TCPL packaging was an excellent stock. ये मैंने mention किया हुआ है, आप मेरे जाके जाके देख सकते हैं previous videos में. We are tracking it because एक structure है वो VCP का follow करती है. Since you have asked this question, I believe कि आपको ये structure मालूम होगा. योगेंद्र जी, I think आपको ये question मालूम ये काइंड ऑफ मेथड तो मालूम होगा कि व्हाट इज VCP एंड अपन कैसे ट्रेड करते हैं. तो ये जो एक बिग बेस से निकला है विद अ गैप अप, इट इज एन एक्सीलेंट स्टॉक. आई वुडंट से इट इज नॉट एन एक्सीलेंट स्टॉक, इट्स एन एक्सीलेंट स्टॉक. एंड अगर मैं करंट एक्शन भी देखूँ ना, तो एक मोर ऑफ एक स्ट्रॉन्ग अप मूव के बाद ये इसने ऑलरेडी थोड़े दिन का एक कंसोलिडेशन दे दिया है. बट कैसा है ना योगेंद्र जी, मैंने अभी अपने वीडियो में बताया कि we are not comfortable in opening up new positions because this will create against our risk management thing, because market हल्के से एक्सटेंड हमको पर्सनली लग रहा है, हो सकता है हम यहाँ पे गलत होंगे, बट वी बिलीव के वी हैव टू स्टिक टू व्हाट द डेटा सेज, एंड मार्केट में का डेटा थोड़ा सा एक्सटेंडेड ज्यादा है. दैट इज द रीजन विल बी गोइंग, वी वोंट बी ओपनिंग अप न्यू पोजीशन. बट अगर हम पोजीशन बना रहे होते सो हम डेफिनेटली इस पिवट लेवल के ऊपर एंट्री लेते, and it could have shown great move. This is what we believe. Thank you. uh, अमन जैन का है, सॉरी अमन, I can't comment on C कॉल उठाना है या पुट उठाना है. As per SEBI guidelines, I won't be commenting on that. So thank you so much. And Shubham, I think आपका मैंने क्वेश्चन आंसर कर दिया on to are we out of the bear market. I've already answered. And so as I mentioned that we are not out of bear market. It's about the structural change. तो वो जैसे जैसे structure change होता है, we need to adjust and we need to adapt onto that end. Thank you. Ola. So I'll just share my view on how things. So I think ये doubt किसका है? This is Aman, नहीं, Siddharth and Aman Jain. So if you'll see guys, ये जो stock है, this is already what down by around ऑल टाइम हाई से कुछ 68-70% डाउन है. सो मैं ये नहीं बोलूँगा स्टॉक अच्छा या बुरा है, आई वोंट कमेंट ऑन दैट थिंग, बट आप लोग को एक बहुत एक इजी कंपैरिजन यार हो जाना चाहिए कि आपका स्टॉक का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है. सो अगर ये स्टॉक का स्ट्रक्चर ऐसा है तो दिस इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रक्चर. सो दिस डजंट मेक सेंस टू कीप अ ट्रैक एज वेल. इसको ट्रैक रखने में भी कोई सेंस नहीं है. जस्ट अ सेकंड. यस. सो ऐसे सब स्टॉक्स को अपने को रख के कोई स्ट्रक्चर में सेंस भी नहीं है कि दिस वुड नॉट गिव यू दैट काइंड ऑफ रिटर्न्स. you always need to focus on stocks. जैसे आपने TCPL पैकेजिंग के एग्जांपल अपन ने दिया था, तो if you compare, I'll just put it side by side. TCPL packaging and I'll put Ola over here. Oh, sorry, I'll put Ola. So देखिए, इसका अगर मैं डेली चार्ट भी करूँ, सो इफ यूल सी कि डेली में स्ट्रक्चर कैसा है और TCPL का स्ट्रक्चर कैसा है. सो ये दो स्ट्रक्चर अगर आप कंपेयर कर लोगे, सो इट विल बी एट अ ग्रेटर क्या बोलते हैं प्लेस टू एनालाइज कि कौन सा स्टॉक अच्छा है. क्लियरली अपन को दिख रहा है TCPL में स्ट्रेंथ है, ओला में स्ट्रेंथ नहीं है. सो दैट इज देयर इज नो पॉइंट इन ट्रैकिंग दिस स्टॉक इज व्हाट वी बिलीव. सो या, थैंक यू सो मच. I'll just see any viewers on CNX IT. Yeah, sure, we can discuss. I think अपन ये पहले भी डिस्कस किया था IT का. We'll again discuss CNX IT. So yeah, so मैंने वीडियो में पहले मेंशन किया था कि ये जो इंडेक्स है IT का, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस करके एक इसने ब्रेकआउट दिया है. उसके बाद वहाँ पे एक सपोर्ट लेके वो ऊपर गया. अगेन अ सपोर्ट वाज ब्रोकन डाउन and index is trying to get on to this resistance area. So nutshell में what we believe is कि 38,700 के ऊपर अगर IT का इंडेक्स क्लोज देता है, वहाँ से ट्रैजेक्टरी बहुत अच्छी हो सकती है. So I'll mention the level 38,700 CNX IT. अगर इसके ऊपर क्लोज देता है तो we might see a better structurally एक अच्छा हो सकता है. Just hold on. Yes. So this is our view on IT. Thank you, Samyak ji. Now I think I'll. So सिद्धार्थ जी, आपने VCP पैटर्न के बारे में पूछा है. So what we'll do is ये वीकेंड पे ना अपन एक VCP का एक
एक छोटा सा सेशन रख लेते हैं, बिकॉज मैं आपको 10 मिनट में समझा नहीं पाऊंगा एंड आई डोंट वांट टू डू दैट. सो मैं टीम से बात कर लूंगा एंड वीकेंड पे अपन एक वीसीपी का सेशन रख लेते हैं जहाँ पे मैं क्विकली एक शॉर्ट नक्शे में आपको मैं समझा दूंगा वीसीपी क्या होता है एंड आई विल टेक कपल ऑफ एग्जांपल्स जो आप लोग को सबको हेल्प करेंगे. सो दिस वीकेंड विल हैव अ सेशन ऑन वीसीपी स्पेसिफिकली एंड अपन वहाँ पे बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है. सिद्धार्थ जी ने पूछा हाउ टू ट्रेल स्विंग पोजीशन. सो आई विल आंसर दिस क्वेश्चन एज वेल. सो सिद्धार्थ जी, आपका पोजीशन जो आपको ट्रेल करना है उसके दो तरीके हैं. या तो आप एक आर मल्टीपल के थ्रू कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि आप मूविंग एवरेज के थ्रू कर सकते हो. हम लोग क्या करते हैं, सो फॉर एग्जांपल अभी हमारा ग्लैक्सोस्मिथ एक रिसेंट एग्जांपल है, तो मैं वही ले लेता हूँ. तो आपको मालूम है हमारी एंट्री कहाँ पे हुई है, जहाँ पे मैंने मार्क करा था. तो हमने क्या किया ना, सपोज हमारे पास 50% क्वांटिटी जो थी, सो हमने 50% क्वांटिटी जो है वो सेल करी एट 3 आर. अब ये जो 3 आर का कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको जो वीकेंड सेशन होगा उसमें बहुत अच्छे से डिटेल में समझा सकता हूँ कि व्हाट इज 3 आर, व्हाट इज 4 आर, व्हाट इज 5 आर. तो आपको वो रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी हेल्प करेगा, प्लस एक एग्जिट और एंट्री के लिए, एग्जिट के लिए स्पेसिफिकली बहुत हेल्प करेगा. सो मैंने ये वीडियो में बता रखा ऑलरेडी, लेकिन कि आर मल्टीपल क्या होता है, रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है, तो वो आप मेरे वीडियो में जाके प्लीज देख लीजिएगा. वो आपको बहुत अच्छे से हेल्प कर जाएगा. सेकेंड क्या कर सकते हैं अपन, अपन यूज कर सकते हैं मूविंग एवरेजेस. तो जैसे अभी का जो हमारे पास कैसा है, हमारे पास 50% क्वांटिटी बाकी, मैं सब लिख देता हूँ ताकि इजी रहे. सो हमारे पास 50% क्वांटिटी जो है वो रिमेनिंग क्वांटिटी है. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम उसको 10-20 से खाली राइड करेंगे. तो जैसे जैसे प्राइस ऊपर आता रहेगा, 10-20 आपका ऊपर आता रहेगा, एंड जैसे ही एक 10 के नीचे क्लोज देता है तो हम लोग 50% एग्जिट मारेंगे, और फिर 20 के नीचे जब क्लोज देगा तो हम जो 50% बाकी है उसमें से 25% एग्जिट मार देंगे. सो ये हमारा बहुत सिंपल रहता है कि 50% आप 3 आर पे बेच दो, बाकी का 50% आप 10 और 20 से राइड करो. जैसे 10 के नीचे क्लोज देता है तो जो आपकी 50% क्वांटिटी बाकी है उसमें से 25% बेच दो, मतलब 50% का आधा बेच दो 10 मूविंग एवरेज के नीचे. बाकी जो 25% क्वांटिटी बाकी है उसको 20 से राइड करो, एंड इफ यू गेट अ सेटअप. सो फॉर एग्जांपल अपना जो स्टॉक है ग्लैक्सोस में, लेट्स होप कि वो यहाँ पे हाइपोथेटिकली सेट हो गया, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको वापस ऐड करूंगा, मैं इसको इस लेवल के ऊपर वापस ऐड करूंगा. तो मैं ऐड करने से घबराऊंगा नहीं, क्यों, बिकॉज ये ऑलरेडी स्टॉक मैंने 50% बेच दिया है, तो घर पे मुनाफा आ गया है, बाकी 50% से अपन को खेलना है. सो दिस इज हाउ वील बी प्लेइंग. बट सिद्धार्थ जी, आपको एक क्वेश्चन, मैं वीकेंड पे एक अच्छा सेशन लेंगे ना, उसमें मैं बहुत आपको अच्छे से आंसर कर पाऊंगा. थैंक यू. ओके, एनी व्यू ऑन SBFC फाइनेंस. ठीक है, विल जस्ट डिस्कस सर्टेन स्टॉक्स, तो अच्छा रहेगा. सो ओह, इट्स अ ग्रेट स्टॉक, बिकॉज आई टेल यू व्हाई इट्स अ ग्रेट स्टॉक. मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन योगेंद्र जी ने पूछा है. सो योगेंद्र जी, इसमें बहुत एक बहुत अच्छा भी मैं आपको देता हूँ. दिस इज सिमिलर टू आरती फार्मा लैब सर, बिकॉज क्या होता है ना कि ये स्टॉक आपका बहुत वॉलेटाइल है. दिस इज नॉट अ लीनियर स्टॉक. इफ यू विल सी, अगर आप डेली पे जाओ तो मैं वो क्लियरली दिख रहा है कि स्टॉक का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, ऐसा स्ट्रक्चर है, स्टॉक है ही ऐसा. तो मैं आपको बहुत सिंपल वे में बोलूंगा, आपको जब आपके नेकेड आइज से आपको लगे ना कि ये स्टॉक का स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, स्टॉक को जाने दो. नथिंग यू कैन डू विच विल हेल्प यू मेक मनी इन दिस स्टॉक. बिकॉज अगर आप एंट्री आपकी कहीं पे भी लेते हो तो आपकी एंट्री बहुत इजीली आपका स्टॉप लॉस हंट कर लेगी. बिकॉज स्टॉक, अगर मैं आपको डेली पे भी जाके देख बताऊं, सो स्टॉक ने कभी भी एक लीनियर मूव दिया ही नहीं है. सपोज अगर ये गैप अप दिया था तो वहां से इसने एक ही दिन के गैप अप के बाद 26% ऑफलोड कर दिया हाई से. सो दिस विल हैपन अ लॉट विथ यू. एंड बहुत सिंपल आप एक सोच सकते हो कि अगर स्टॉक आपका साइडवेज है लेकिन स्ट्रक्चरली अप ट्रेंड नहीं है, जो अपन ने पाथवे की बात की थी, सो वो पाथवे आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए. एक स्टॉक होता है, मैं आपको 3 एग्जांपल लेके देता हूँ. एक स्टॉक होता है ओला जैसा, जो ऐसे चल रहा होता है, वो आउट ऑफ पिक्चर है. एक स्टॉक होता है TCPL पैकेजिंग जैसा, तो ये मूव चलने के बाद थोड़ा टाइम लेता है और वहां से फिर मूव करता है. और एक और जो स्टॉक होता है वो होता है आपका SBFC फाइनेंस जैसा, जो आपका ऐसे चल रहा होता है. सो इन तीनों में से जो बेस्ट स्ट्रक्चर है वो ये स्ट्रक्चर है. और ये जो दो स्ट्रक्चर्स है, इन दोनों को आप हटा दो अपने दिमाग से, अपन को ये कभी ट्रेड ही नहीं करना है.
सो दिस इज व्हाट वी नीड टू फोकस ऑन। जो मैंने जो जहाँ पे एरो मार्क किया है, यही स्ट्रक्चर पे अपन को ध्यान देना है, और ये स्ट्रक्चर पे अपन वीकेंड पे एक लंबा सेशन ले लेंगे, जहाँ पे इट विल बी इजियर फॉर अ लॉट ऑफ द यूजर्स टू लर्न एज वेल एंड अंडरस्टैंड एज वेल कि ये स्ट्रक्चर अपन ढूंढे कैसे। ठीक है। सो सिद्धार्थ जी, मेरा व्यू बहुत सिंपल रहेगा। ये स्टॉक बहुत वॉलेटाइल है। सो पर्सनली हम लोग ये ऐसे सब स्टॉक्स में कभी ट्रेड करेंगे ही नहीं आगे जाके, अनटिल अनलेस उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है तो। सो थैंक यू, आई होप द डाउट इज क्लियर। लॉस इज टॉर्चर माय रीडिंग मोटिव। सो एक यूजर का क्वेश्चन क्वेश्चन है कि उन्होंने 30%, कैन यू गो थ्रू CDSL? Oh sorry, I just missed the doubt, sorry. So I'll just go through CDSL once and I'll see the weekly. So I think I'll apply the moving averages, gives, okay. सो आई थिंक सम्यक जी, ये जो स्टॉक है इसका एक अर्निंग्स के बाद एक गैप डाउन हुआ था, एंड द स्टॉक हैज सिंस सीन अ गुड सेलिंग फ्रॉम द फ्रॉम द टॉप। एंड आई आल्सो बिलीव इसका जो स्ट्रक्चर है वो हल्का सा चेंज हो गया है, बिकॉज इफ यू सी CDSL ने बहुत अच्छा रन दिया है। सो जैसे अगर आप मैं वीकली देखूं तो ये बेस के बाद CDSL ने अच्छा रन दिया है, यहाँ पे CDSL ने बहुत अच्छा रन दिया फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल। तो ये बहुत अच्छा रन दे चुका CDSL। तो नाउ व्हाट आई बिलीव इज कि CDSL को अपना एक ट्रैजेक्टरी चेंज करने के लिए कौन से दो लेवल्स है वो बहुत जरूरी है। वो आपके सामने है, ये लेवल एक बहुत जरूरी है एंड ये लेवल बहुत जरूरी है। सो अनटिल अनलेस CDSL ये लेवल्स के ऊपर क्लोज नहीं देता है, तो वहां से द मूव विल स्टिल रिमेन ऑन द डाउन हैंड साइड। तो हो सकता है कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ से जाके ऐसे यहाँ पे आके द स्टॉक माइट टेक अ पॉज, एंड वहां से फिर आपका एक फॉल आए। दिस इज वन सिनेरियो। एक सिनेरियो दूसरा हो सकता है कि द स्टॉक गिव्स अ क्लोज अबव दिस लेवल। तो until stock gives a close above this level, there is nothing to worry about. But if you ask me today, it is a bearish view, not a disclaimer आपको sell करना है buy करना है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, but it is a bearish view because the moving averages are downward sloping। आप देखो कि 10 20 50 सब नीचे जा रहे हैं। So until unless इसका स्ट्रक्चर जो अपन बात करते हैं पाथवे का, आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अपन बार बार रिपीट ही कर रहे हैं, एंड ये अपन को सबको हेल्प करेगी कि जितना अपन पाथवे को दिमाग में क्लियर रखेंगे कि भाई हाँ ये पाथवे है, उतना अपन को ईजी रहेगा। तो मैं पाथवे के लिए मार्क कर देता हूँ, आई विल टेक दिस। सो दिस इज द पाथवे विच CDSL इज करंटली एट, राइट। तो जैसे ये पाथवे ऐसा नहीं होता, तब तो द स्ट्रक्चर, यू नो द स्ट्रक्चर इज नॉट इंटैक्ट। सो वेरी सिंपल, आपको ओवरऑल स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है, नॉट ऑन टू व्हाट द स्टॉक इज डूइंग। बट एक स्ट्रक्चर देख लीजिए ओवरऑल क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो वहां से आपको जो स्ट्रक्चर चेंज होगा उसके लिए वेट करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट आई हैव मेंशन ऑन द स्क्रीन। ये स्ट्रक्चर जब तक चेंज नहीं होता तब तक आपको कोई हेल्प नहीं हो सकती है ऑन टू द स्टॉक लेवल। यस, ओके। सो एंड वन यूजर हैज आस्क्ड कि उनका 30% लॉस है, वो सब है। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आपको कोई डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये मार्केट में सबका पोर्टफोलियो, मेजॉरिटी ऑफ लोगों का पोर्टफोलियो 25-30% डाउन है। आपको बस केयरफुली उसको रिस्क को एनालाइज करना है। यू डोंट हैव टू पैनिक, एंड दिस विल हेल्प यू। जैसे आपने मेरे को बताया कि आपका RVNL में होल्डिंग है, ठीक है। सो अपन RVNL लेते हो तो सर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि अगर आपका RVNL में होल्डिंग है ऑलरेडी, तो आपने एक व्यू के साथ होल्ड किया होगा, एंड अगर आपने वो स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं किया है तो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करने की बहुत ज़रूरत है। जस्ट यस, सो just 2 minutes, I need to do some cleaning, yeah. So I think perfect, आई थिंक आई हैव गॉन थ्रू ऑल। यस, सो जैसे RVNL में आपने बोला होल्डिंग है आपका, मैचडॉक में आपका होल्डिंग है, तो आपके जो स्टॉक्स है वो स्ट्रक्चरली अगर मैं बोलूँ तो बहुत अच्छे हैं। अगर आप देखोगे मैचडॉक, तो मैचडॉक बहुत अच्छा स्टॉक है जो आपने ले रखा है ऑलरेडी एज पर आर व्यू, एंड वी बिलीव कि जैसे यहाँ पे एक ब्रेकआउट यहाँ पे देता है इसके ऊपर, तो मैचडॉक में अपन को बहुत अच्छा मूव मिल सकता है, अराउंड 30-35% का और अपन को मूव मिल सकता है। जस्ट अ डिस्क्लेमर, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको मैच डॉक बाय करना है या ऐड करना है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ जो आप मेरे को पूछ रहे हैं। तो मैच डॉक अगर आपके पास है तो कोई घबराने की बात नहीं है। आपका अगर पोर्टफोलियो डाउन भी है ना सर, तो इट विल टेक टाइम, बिकॉज आप समझिए कि अगर आपके सपोज कोई भी स्टॉक है जो 40% डाउन है, सो फॉर एग्जाम्पल मैं RVNL की बात करूँ, तो अगर आपने फॉर एग्जाम्पल
वो एक होता है ना फोमो कि आपने यहाँ पे बाय कर लिया, तो अगर आपने यहाँ पे बाय किया है तो आपका स्टॉक ऑलरेडी कितना डाउन है, 50% डाउन है। तो ये आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। आपका कोई स्टॉक अगर 50% डाउन है ना, तो वहां से उसको 100% का मूव चाहिए कहाँ पे आने के लिए, खाली आपके भाव पे आने के लिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपने स्टॉक यहाँ पे बाय किया है तो यहाँ से आप ये मत समझिए कि ये 50% का मूव है। देखो, आपके सामने मैंने इमेज बना दी है, आपका स्टॉक 600 का 300 हुआ तो 50% डाउन है, बट आपका स्टॉक 50% का डाउन है। 300 से 600 के लिए उसको 100% मूव चाहिए। तो आप खुद एक लेमैन का सोचिए, एक स्टॉक को डबल होने के लिए ऐसा तो है नहीं कि 21 दिन में डबल हो सकता है, ये कोई पॉन्जी स्कीम तो है नहीं, मार्केट है तो टाइम लगेगा। तो आप डिमोटिवेट मत होइए, टिके रहिए मार्केट में। जितना आप टिकेंगे आपको बहुत हेल्प होगी। एंड यस, लर्निंग क्लास फॉर रिटेलर्स जो है वो सैटरडे को भी आप प्लानिंग, आई गेट इन टच विद द टीम एंड अपन वीकेंड पे कर लेंगे। बहुत स्ट्रक्चरली बहुत अच्छे से अब हम आपको सिखा देंगे कि व्हाट इज वीसीपी एंड हाउ डू वी ट्रेड। सो दैट इज डन एंड थैंक यू सो मच। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सॉरी गौरव जी, मैं आपको कोई स्टॉक ऐसे रिकमेंड नहीं कर सकता कल के लिए स्पेसिफिकली, बट व्हाट वी आर सीइंग इज, एक खाली ब्लू शेल हमको अच्छा लग रहा है, जो स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, इंटैक्ट स्ट्रक्चर है। एक अच्छे मूव के बाद जैसे साइडवेज एंड अ बेस फॉर्मेशन, तो हम लोग को स्पेसिफिकली अच्छा खाली ब्लू शेल लग रहा है। बट हमने वीडियो में ऑलरेडी मेंशन किया है कि हम लोग कोई नया पोजीशन ओपन नहीं करने वाले, बिकॉज वी बिलीव के यहाँ से जो मूव है, we might get a move, but still we are very intact on the extension के market breadth looks a bit extended। तो that is the reason हम लोग कोई नया पोजीशन बिल्ड नहीं करेंगे। एग्जिस्टिंग में we have GlaxoSmithKline and SBI कार्ड्स, जो हम लोग खाली अकॉर्डिंगली ट्रेल करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। योर व्यूज ऑन GRSE। GRSE just so yeah, GRSE में currently this is acting as a major supply zone। So we believe कि यहाँ पे अगर एक supply zone निकल जाता है and once crossing after this level, if we get a setup kind of this, तो यहाँ पे अपना एक अच्छा buying हो सकता है, is what we believe। But जब तक ये supply zone cross नहीं करता, we won't be interested in the stock particularly। But there are different ways आशीष जी जहाँ पे आप इसको play कर सकते हैं। तो ये जो एक momentum आया है यहाँ से, एक ये 52% का एक अच्छा मूव आया है। सो यू कैन ट्रीट इट एज अ वेरी काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म के यहाँ पे एक आपका बाइंग इनिशिएट हो सकता है। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल जहाँ पे आप डिफरेंट वे में इसको प्ले कर सकते हैं। आई डोंट मीन टू से कि ये करना ही करना है, ये आप कर सकते हैं। बट ओवरऑल व्हाट वी बिलीव इज कि दिस सप्लाई जोन इज येट टू बी टेकन आउट। तो ये सप्लाई जोन के बाद जो ट्रैजेक्टरी है, it can be smoother as compared to now। So we'll be waiting for this supply zone to get crossed and उसके बाद जब set होता है then we'll be going ahead। So thank you so much। I think there are no more doubts which are left। uh, thank you so much for joining in, guys। Thank you for your patience। I'll see you tomorrow at 7 p.m. live, and अपन again we'll review whether stocks कैसा कर रहे हैं, index कैसा कर रहा है, and we'll again have a great discussion। And please bring in your doubts। आपको सेशन अच्छा लगा तो kindly share and अपने और दोस्तों को लाइए so that everyone can learn together। And thank you so much for your time, thank you so much for joining। Take care, I'll see you tomorrow। Take care।